Hello students, in this video we will cover few questions on buffer solution so that you would know how to use the formulas, how to analyze such questions. So the first question is you have 50 ml of 0.2 molar solution of acid. Okay, so volume is given to you, concentration is given to you, Ka is given to you as 10 raised to minus 5. It is mixed with 50 ml of X molar solution of salt, which is Na plus A minus. So this will dissociate completely to form Na plus and A minus. Okay. Now what you have to find is you have to find out X. It is given to you that pH of this buffer solution is equal to 4. Now यहाँ पे pH का buffer, so this is your acidic buffer, right? ये weak acid and उसका salt है. So pH can be written as pKa plus log of salt, that is concentration of A minus, divided by acid, that is concentration of HA. Now in this case pH की वैल्यू आपको 4 दी हुई है. pKa is minus log of Ka. आप minus log of Ka करोगे तो ये आपको 5 मिल जाएगा. Plus this will become equal to log of concentration of A minus upon HA. Okay. Now this will become 4 minus 5 is minus 1. So let me write this as minus 1 is equal to log of A minus upon HA. So therefore A minus upon HA can be written as, ये base 10 है ना, तो ये लिखा जाएगा 10 raised to minus 1. So concentration of A minus is 10 raised to minus 1 times concentration of HA. Okay. Now let's say final volume is V. Okay. V आपका ये final volume है. तो concentration of A minus can be written as number of moles of A minus divided by final volume. आपको आपका final volume पता है 50 plus 50 that is 100 ml. सी दोनों साइड पे मैं वॉल्यूम मिलीलीटर्स में देता हूं तो यूनिट्स कन्वर्जन की जरूरत नहीं है. दिस इज 10 रेज टू माइनस 1 दैट इज 1 by 10. दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HA डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट इज 100 ml. ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A माइनस will be equal to volume into molarity is equal to number of moles. तो एक तो पहले ये 100 और 100 कट कर देता है. सो दिस विल बिकम 50 इंटू एक्स. दिस इज इक्वल टू 1 by 10. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HA, इट इज वॉल्यूम इंटू मोलारिटी, 50 इंटू 0.2. ये 50 और 50 कट हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ एक्स दैट यू विल गेट ओवर हियर इज 0.2 by 10, that is 0.02 मोलर. ठीक है. Fine. We'll go on to the next question now. The next question is we have a basic buffer NH4Cl and NH3. Okay, so ये आपका weak base होता है. अमोनिया is a weak base. आप NH3 को ना NH4OH की तरह देखो, क्योंकि आपको बेस में हमेशा OH माइनस की आदत है ना, तो इसलिए NH3 को you can think of it as NH4OH. Okay, fine. So it's a 0.5 liter solution. pKb of this weak base is given to you as 4.74. अच्छा, इन दोनों के concentration 0.2 and 0.2 दिए हुए हैं आपको. Okay. अब what you have to do is you have to find out pH of the buffer solution after addition of 0.05 moles of NaOH. Okay. Now आप जैसे ही थोड़ा सा बेस ऐड करोगे क्या होगा यहाँ पे, लेट्स ट्राई टू सी व्हाट वुड हैपन. नाउ दिस सॉल्यूशन हैज NH4 plus ions, it has Cl minus ions, it has NH4 plus तो है ही, NH4OH जो अनडिसोसिएटेड होगा वो होगा, and you will have some amount of OH minus ions. Now जैसे ही आप 0.05 moles of NaOH ऐड करोगे, what would happen is NaOH will give you OH minus ions.
एंड ये OH माइनस आयंस NH4 प्लस के साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म NH4OH. So NH4 plus ions will react with these extra OH minus ions to form NH4OH. Now इसके वजह से क्या होगा, ये जो बेस है, बेस की अमाउंट या बेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा एंड ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, राइट. सो यू हैव 0.05 मोल्स ऑफ OH माइनस, क्योंकि जितना NaOH है उतने ही OH माइनस के भी मोल्स होंगे. NH4 प्लस के कितने मोल्स होंगे? सी NH4 प्लस यहां से आ रहा है और यहां से आ रहा है, बट ये वीक बेस है तो जो भी यहां से आएगा वो नेग्लिजिबल होगा ना. मैक्सिमम NH4 प्लस तो यहीं से आएगा. एंड कितने मोल्स आएंगे यहाँ पे? इट विल बी इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम. सो 0.2 इंटू 0.5, दिस विल बी 0.1. सो ये इनिशियली NH4 प्लस के इतने मोल्स है. एंड वैसे ही बेस के इनिशियली आपके पास कितने मोल्स है? 0.2 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम है 0.5, दिस इज 0.1. अब हमें ये पता है कि ये सारे के सारे इसके साथ रिएक्ट हो जाएंगे, तो माइनस 0.05, 1 reacts with 1, so 0.05 will react with 0.05 and यहाँ पे plus 0.05 will get formed. So finally what you will have is 0.05, this is 0 and this is 0.15. Okay. नाउ अब हमें pH फाइंड आउट करना है. बेसिक बफर के लिए हम लोग POH का फॉर्मूला दिखता है ना, pH नहीं दिखते डायरेक्टली, आप POH लिखते हो. सो POH इज रिटन एज PKB प्लस log of salt upon acid. So PKB is how much? PKB is given to you as 4.74 plus log of concentration of salt is now 0.05 and concentration of acid is 0.15. So therefore POH will be equal to 4.74. This is 1 by 3, right? 5. तो ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 raised to -1 हो जाएगा. आप -1 बाहर निकालो. So this will become equal to minus log 3. एंड माइनस log 3 की वैल्यू 0.5 के आसपास होती है. सो 4.74 माइनस 0.5, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 4.24 रफली. ठीक है. नाउ पहले जब ये दोनों इक्वल थे तो आपका POH कितना था? अगर जो ये दोनों इक्वल थे तो सॉल्ट बाय एसिड वुड बी 1 एंड log 1 is 0. सो इनिशियली आई कैन राइट इनिशियली POH was equal to PKB, which was equal to 4.74. ओके. अब बेस ऐड करने के वजह से POH कम हो गया है. pH बढ़ेगा ना, बेस ऐड करते हो तो pH बढ़ता है, तो POH कम होता है, तो इसलिए देखो POH आपका कम हो गया. ओके. अब pH फाइंड आउट करना है, तो वी नो दैट pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH at 25 डिग्री सेल्सियस. So 14 minus 4.24, so this will become equal to 9.76. Fine. अच्छा. Now what would happen if you add 0.05 moles of HCl? Okay. आप एसिड ऐड कर रहे हो. सो इफ यू आर एडिंग एसिड, अगर जो आप एसिड ऐड कर रहे हो तो pH क्या हो जाएगा? pH कम होगा. तो उस केस में अब हम लोग कैलकुलेशंस देखते हैं किस तरह से होंगे. ओके. So if you add 0.05 moles of HCl, what would happen is HCl ये acid है, it will react with base जो हमारा NH4OH है and it will form salt. ठीक है. So amount of HCl is 0.05. अमाउंट ऑफ बेस इनिशियली था 0.1 एंड अमाउंट ऑफ सॉल्ट था 0.1. अब बिकॉज ये रिएक्ट कर रहा है तो दिस विल
ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0.05 रिएक्ट कर जाएगा, सो यहाँ पे 0.05 बचेगा एंड यहाँ पे ये फॉर्म होगा सॉल्ट आपका, दैट इज NH4Cl. सो प्लस 0.05 तो ये 0.15 होगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका जो POH होगा, क्योंकि ये वापस बेसिक बफर है तो आप POH कैलकुलेट करोगे, इट विल बी PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस, सॉरी. So PKB is 4.74, log of salt is 0.15, base is 0.05, तो ये आपको log 3 आ जाएगा. So this is 4.74 plus log 3, that is 0.5 approximately, so 5.24. ठीक है, ये आपका POH हुआ, तो pH होगा 14 minus 5.24, so this will become 8.76. so you can see that आपका जो pH है, अगर जो pH जो है वो आपका कम हो गया है, ओके, द रीजन इज बिकॉज हम लोगों ने एसिड ऐड की है इसलिए. अब बेस ऐड कर रहे थे तो आपको pH 9.76 आ रहा था, आप एसिड ऐड कर रहे हो तो अब आपका pH कम हो जाएगा, दैट विल बिकम 8.76. So I hope this question is clear to you. Okay. The next question is, it is told to you that we have a carbonate buffer. Carbonate मतलब CO3 minus 2. तो CO3 minus 2 ये आपका anion हुआ ना, this will behave like a salt. Now if this behaves like a salt, इसके लिए carbonate जो होता है ये carbonic acid से आता है. Okay. So basically ये acidic buffer हुआ आपका. So this is your acidic buffer. So now the question is, अगर जो ये आपका salt हुआ तो what would be your acid? तो इस salt में बस आपको H plus ions ऐड करना है तो आपका acid आपको मिल जाएगा. जैसे मान लो acetate ion था CH3COO minus, तो उसके लिए acid कौन सा था CH3COOH. आप बस क्या कर रहे हो, H plus ऐड कर रहे हो, राइट. वैसे ही यहाँ पे अगर जो सॉल्ट आपका CO3 minus 2 है तो इसमें आप H plus बस ऐड करोगे तो what you will get is HCO3 minus, that is what you will get. So अब आपका एसिडिक बफर ये हुआ, this is behaving like a weak acid, this is behaving like a salt. आपको ये फाइंड आउट करना है मास ऑफ Na2CO3, क्योंकि यहां से आपको CO3 minus 2 मिलेगा. So mass of Na2CO3 which should be added to 1.5 liters of 0.2 molars NaHCO3. NaHCO3 will give you HCO3 minus, which is your acid. Okay. To make a buffer of pH 10, so यहाँ पे pH required pH is 10. Now H2CO3 के लिए Ka1 4.7 into 10 raised to minus 7 है. H2CO3 के लिए Ka2 4.7 into 10 raised to minus 11 है. अब हमें पता है बफर सोल्यूशन के लिए pH is equal to pKa plus log of salt by acid. Okay, so I can write pH is equal to pKa plus log of carbonate ion CO3 minus 2 concentration divided by the concentration of this HCO3 minus. Now ये जो pKa है it is basically for this acid. Okay, ये pKa हमेशा किसका होता है, weak acid का होता है. So this is for HCO3 minus. अब इन्होंने हमें इसके लिए Ka की वैल्यू नहीं दी है, इन्होंने हमें H2CO3 के लिए Ka1 एंड Ka2 दिया हुआ है. तो हमें ये पता है H2CO3 ये दो स्टेप में डिसोसिएट करेगा क्योंकि देयर आर 2 H plus ions. So I can write H2CO3 will dissociate to form, first step में it will form H plus H, I'll just write it again. H2CO3 will dissociate to form H plus and HCO3 minus. इस स्टेप के लिए Ka is Ka1, यहाँ पे
दिस कंपाउंड इज बिहेविंग लाइक एन एसिड। एंड स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में HCO3 माइनस विल डिसोसिएट, तो ये Ka2 होगा, सो दिस विल फॉर्म H प्लस एंड CO3 माइनस 2। यहां पे दिस इज बिहेविंग लाइक एन एसिड एंड इसके लिए Ka की वैल्यू कितनी है? Ka2 दैट इज 4.7 इंटू 10⁻⁻11। तो जब आप यहां पे pKa फाइंड आउट करते हो फॉर HCO3 माइनस, तो pKa फाइंड आउट करने के लिए आप ये वैल्यू यूज करोगे, दिस इज द वैल्यू दैट यू विल यूज, राइट? क्योंकि दिस वैल्यू इज बेसिकली Ka वैल्यू फॉर HCO3 माइनस। ओके, सो देयरफॉर आपका pKa क्या हो जाएगा? दिस इज माइनस लॉग ऑफ Ka, दैट इज माइनस लॉग ऑफ Ka की वैल्यू है 4.7 into 10⁻⁻11. This is log of A into B. This can be written as log A plus log B. So this is 11 minus log 4.7. ठीक है, you have to remember हमने इसको कंसिडर ही नहीं किया क्योंकि ये तो फर्स्ट स्टेप के लिए था ना, जहां पे H2CO3 was behaving like an acid. बट हमारा ये जो बफर सोल्यूशन है वहां पे हमारी एसिड जो है दैट इज HCO3 माइनस, तो आपको HCO3 माइनस के लिए Ka की वैल्यू चाहिए थी, दैट वाज बेसिकली Ka2 विच वाज दिस। सो अब आपको pKa मिल चुका है, pKa log 4.7, log 5 होता है रफली 0.7, तो log 4.7 कितना होगा? सो लेट मी राइट इट एज रफली log 4.7 is 0.65. So this is equal to 10.35. Okay. Now once you have this, let's put that value over here. आपको pH दिया हुआ है 10 क्वेश्चन में. So this is 10. pK is 10.35 plus log of concentration of CO3 minus 2. Let's say concentration की जगह पे let me write number of moles. तो यहाँ पे number of moles कितने होंगे? I can also write this. हमने आपको याद है एक फॉर्मूला देखा था जहां पे concentrations can also be replaced with number of moles. Okay. So number of moles of CO3 minus 2 is, let me write it as X divided by number of moles of HCO3 minus. So आपको वॉल्यूम पता है, आपको मोलारिटी पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी 1.5 into 0.2, so that is 0.3. So you will get log X upon 0.3 is minus 0.35. Okay. Now this can be written as एंटी लॉग आपको चाहिए होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.3 बार 1.65. ओके, एग्जाम में नॉर्मली इनकी वैल्यूज आपको दे दी जाएंगी. सो देयरफॉर x अपॉन 0.3 इज एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर. ना 0.65 का एंटी लॉग हम लोगों ने देखा है. 0.65 किसका लॉग था? 4.7 का, राइट? तो 0.65 का आप एंटी लॉग लोगे तो ये आपको 4.7 मिलेगा. सो दिस विल बिकम इक्वल टू 4.7 into 10⁻⁻1. This is x upon 0.3. So x will be equal to ये 0.47 into 0.3. So this becomes equal to 0.141. So these are basically number of moles of CO3 minus 2. बट ये CO3 minus 2 आ कहां से रहा है? ये आ रहा है Na2CO3 से. Now you can see that 1 mole of Na2CO3 will give you 1 mole of CO3 minus. तो अगर जो CO3 minus 2 CO3 2 minus के पास हमारे इतने मोल्स है, तो therefore number of moles of moles of Na2CO3 is also equal to 0.141. ठीक है.
एंड बिकॉज दिस इज इक्वल टू 0.141, अब आपको मास चाहिए Na2CO3 का, तो मास वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट. आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा. ठीक है, दैट इज हाउ यू विल फाइंड आउट द मास. ओके, next we'll go on to the next question now. Next question is, we have a mixture of 50 ml of 0.05 molars NaOH and 50 ml of 0.1 molar acetic acid, and आपको इसका pH find out करना है. Okay, now NaOH is a base, this is an acid, so base will always react with acid to form salt and water. तो यहाँ पे let me write down the reactions. NaOH plus CH3COOH, it will form CH3COO minus Na plus H2O. Now number of moles of NaOH, so यहाँ पे according to this reaction 1 mole of this reacts with 1 mole of this. So हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स है, या फिर मिली मोल्स में भी बात करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो 50 इंटू 0.05 वॉल्यूम इंटू मोलारिटी अगर जो आप करोगे तो दिस विल बिकम इक्वल टू 2.5. ये सारे मिली मोल्स हैं. 50 इंटू 0.1 दिस इज इक्वल टू 5 मिली मोल्स, नथिंग एंड नथिंग. दिस इज इनिशियल क्वांटिटी. अब बिकॉज दिस इज इन स्मॉल अमाउंट, ये कंप्लीटली इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा. सो -2.5 -2.5 plus 2.5. okay, finally what you will have is, this is 0, this is 2.5, this is 2.5. now if you see, your final solution has two things. You have a weak acid and you also have its salt with a strong base. अच्छा, सॉल्ट बाय एसिड का ये जो रेशियो है ये 2.5 अपॉन 2.5, दैट इज 1, करेक्ट. नाउ एज लॉन्ग एज दिस रेशियो इज बिटवीन 10 एंड 0.1, मैंने आपको कहा था आप इसको बफर सोल्यूशन की तरह ट्रीट कर सकते हो. तो अगर जो बफर सोल्यूशन की तरह ट्रीट करोगे तो बिकॉज दिस इज एन एसिडिक बफर, आप पीएच का फॉर्मूला जो है वो ये ऐसे लिखोगे, pKa plus log of salt by acid. So this becomes, therefore pH is equal to, pKa की वैल्यू आपको 4.7 दी हुई है, log of salt by acid. salt का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज 50 plus 50 दैट इज 100. So it will be 2.5 by 100. This will also be equal to 2.5 by 100. So 2.5 by 100 upon 2.5 by 100, which is equal to 1. Log 1 is 0. So आपका pH जो होगा that is equal to 4.7. ठीक है. अब हम लोग नंबर्स थोड़े चेंज कर देता है. सो मान लो ये 100 ml हो और ये 50 ml हो, तो उस केस में क्या होगा. सो लेट्स से वी हैव 100 ml of 0.05 molars NaOH plus 50 ml of 0.1 molar CH3COOH. ओके, एंड अब आपको इसका pH फाइंड आउट करना है. नाउ अगेन दिस इज बेस, दिस इज एसिड, दे विल रिएक्ट विथ ईच अदर. तो ये NaOH है, ये CH3COOH है, दिस विल फॉर्म CH3COO minus Na plus H2. नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं हमारे पास, 100 into 0.05, that is 5 millimoles. एंड एसिड हमारे पास कितना है, 50 into 0.1, that is 5 millimoles.
Okay, this is your initial quantity. Nothing. Now 5 will, see 1 OH minus will react with 1 H plus, right? So यहाँ से आपके पास 5 OH माइनस आएंगे, यहाँ से आपके पास 5 H प्लस होंगे. So 5 OH माइनस will react with 5 H plus. So 5 के 5 रिएक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे भी 5 के 5 रिएक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे 5 बनेंगे, यहाँ पे ये छोड़ दो इसको. So finally this amount left would be 0, यहाँ पे amount left would be 0, यहाँ पे it will be equal to 5. ठीक है. Now if you see over here, final solution में ना ही base बचा हुआ है, ना ही acid बची हुई है, बस जो बचा हुआ है that is salt. Only salt solution is left. So salt solution is left. ना जब बस salt solution होता है तो इसका आप pH कैसे फाइंड आउट करते हो? ना जब बस सॉल्ट सोल्यूशन प्रेजेंट होता है तो हमें पता है कि सॉल्ट सोल्यूशन के लिए हम लोग हाइड्रोलाइसिस का कंसेप्ट यूज करता है. करेक्ट. नाउ दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस. सो फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, pH का जो फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू, इसके लिए pH का फॉर्मूला ये होता है हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C. So I write this as half pKw. pKw is 14. pKa एसिटिक एसिड का pKa आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.74 प्लस log ऑफ, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का अब कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? इट इज नंबर ऑफ मोल्स मिलीमोल्स दैट इज 5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स दैट इज 150. ओके, सो 5 by 150 दैट इज 1 by 30. सो ये 1 by 30 एंड अब आपको इसको आगे सॉल्व करना है. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हाउ विल यू, यहाँ पे द डिफरेंसेस इस पार्ट में एंड ये प्रीवियस पार्ट में डिफरेंस क्या था? यहाँ पे एसिड और सॉल्ट दोनों थे फाइनल सोल्यूशन में, तो आप बफर सोल्यूशन का कंसेप्ट यूज कर रहे थे. यहाँ पे बिकॉज फाइनली एसिड नहीं है ना, बस सॉल्ट ही प्रेजेंट है. सिंस सॉल्ट ही प्रेजेंट है, आप बस जो है हाइड्रोलाइसिस का ही कंसेप्ट यूज करोगे एंड हाइड्रोलाइसिस के लिए जो फॉर्मूला है वो आप फॉर्मूला लिखोगे. ठीक है, फाइन. Now we will look at neutralization reaction. Let's say you have 40 ml of 0.1 molar acetic acid. तो इसके कितने मिलीमोल्स हो गए? वॉल्यूम इनटू मोलारिटी. सो यू विल हैव 4 मिलीमोल्स ऑफ CH3COOH. अब आप लोगों ने टाइट्रेशन परफॉर्म किया हुआ है. टाइट्रेशन में क्या होता है कि आप ब्यूरेट में अब एक दूसरा कंपाउंड देते हो. मान लो एसिड अगर जो आपने ऑलरेडी फ्लास्क में दिया हुआ है, तो फिर ब्यूरेट जो होता है उसमें अब आप बेस देते हो और धीरे धीरे अब बेस ऐड करना स्टार्ट करते हो. सो लेट्स से बेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 0.1 मोलर. ओके, अब हम लोग मान लो 10 ml ऐड करते हैं. इफ वी ऐड 10 ml ऑफ बेस, सो इफ यू ऐड 10 ml ऑफ बेस, NaOH के कितने मोल्स हो जाएंगे? वॉल्यूम इनटू मोलारिटी, सो यू वुड हैव 1 मिलीमोल. ठीक है. नाउ 1 मिलीमोल ऑफ बेस है तो इट विल रिएक्ट विथ, आपका रिएक्शन यहाँ पे क्या है? NaOH रिएक्टिंग विथ CH3COOH. ठीक है, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. हमें पता है 1 मोल ऑफ NaOH रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ CH3COOH. So if you have 1 millimole of NaOH, acid reacted would also be 1 millimole. So acid remaining would be 4 present था, उसमें से 1 react हो चुका है, so 3 millimole. अच्छा, now final reaction complete होने के लिए NaOH के भी आपको 4 moles चाहिए ना, क्योंकि acid के भी तो आपके पास 4 millimoles है. तो अभी फिलहाल 1 millimole ही react किया है. So 1 millimole ही since react किया हुआ है, I will say that 1/4 acid has reacted, correct?
So I'll say 1/4 neutralization is completed. 1/4 neutralization is completed. Okay. अब मान लो ये 1/4 न्यूट्रलाइजेशन को मैं कहूंगा 1/4 इक्विवेलेंस पॉइंट. 1/4 इक्विवेलेंस पॉइंट. अब इसी तरह से मैं आगे टेबल बनाता जाता हूं. So now if you add 20 ml, so number of moles will be 20 into 0.1, that is 2 millimoles. Now 2 millimoles of NaOH will react with 2 millimoles of acetic acid. तो 4 में से 2 रिएक्ट हो गए तो 2 बच गए. नाउ आधे रिएक्ट हो गए ना, सो दिस बिकम्स योर हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट या हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट. व्हेन यू ऐड 30 ml ऑफ NaOH, तो इट मीन्स 3 मोल्स होंगे, 3 मोल्स रिएक्ट करेंगे, 1 मोल बच जाएगा. सो दिस बिकम्स योर 3/4 न्यूट्रलाइजेशन और 3/4 ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट. व्हेन यू ऐड 40 ml, तो 4 millimoles of NaOH, they'll completely react with 4 millimoles of acetic acid. अब 0 बच जाएगा. You would have complete neutralization, which is also called as equivalence point. Only salt is present now. So at equivalence point only salt is present. तो आपको बस salt hydrolysis reaction ही consider करना है यहाँ पे. Okay. Now according to this reaction आपको पता है 1 mole produces 1 mole. So 4 millimoles now will produce 4 millimoles of this. तो यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे? आपको नंबर ऑफ मिलीमोल्स पता है, दैट इज 4. आपको टोटल वॉल्यूम पता है 40 ml NaOH का, 40 ml एसिटिक एसिड का, सो टोटल वॉल्यूम इज 80 ml. तो यू विल गेट द कॉन्सेंट्रेशन. तो आपको सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी मिल जाएगा. यहाँ पे एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे यू हैव इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड एंड द सॉल्ट. तो व्हेन यू हैव इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड एंड सॉल्ट, वी विल से दैट यहाँ पे जो बफर सोल्यूशन बनेगा इट विल हैव हाईएस्ट बफर कैपेसिटी, राइट? सो दिस इज बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. हम लोग डिटेल में आगे के लेक्चर्स में टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे टाइट्रेशन इज नथिंग बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एंड टाइट्रेशन रिएक्शंस खत्म हुए या नहीं हुए उनको आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट विल डू इज हम लोग इंडिकेटर्स ऐड करेंगे. तो तब हम लोग फिर इंडिकेटर थियोरी पढ़ेंगे. ओके. बट वहां पे जो बेसिक कंसेप्ट यूज होगा वो यही होगा. ठीक है. थैंक यू.